Hello, good evening, everybody. So once again, I welcome all of you in today's current affairs. Okay. So in today's current affairs, we are going to discuss some good articles from the Hindu newspaper. Okay. But mostly, the Hindu newspaper today was dominated by the recent big thing which has happened. That is the signing of free trade agreement between India and European Union. Okay. So today, this is the article. Mother of all the deals, India and European Union finalize free trade agreement. So here, it is very important to know the basics about what is free trade agreement, then how free trade agreements are negotiated. Okay, then brief history of India European free trade agreement. Okay, India and European Union free trade agreement, and how it will be going to shape in future and how it will be going to help in future both the countries. Okay, so then also place in the electoral roll is a qualified right. Okay, what are qualified rights? I will also tell you that. And the election commission is giving explanations to Supreme Court of India that place in the electoral rules is basically a qualified right, and this right must be consistently checked. Only when a person qualifies, then the person must be placed on the electoral rolls. Okay, the solution of falling rupee in India is lies in diplomacy. Okay, consistently, if you see that Indian rupee against dollar is consistently falling, and it has breached the 90 mark. Now it has also breached rupees 91 mark also. So consistently rupee has been depreciating. Okay, what are the causes? I have already discussed in past videos. You can check that. Okay, but today I will tell you one good article in which the writer is also one of the former RBI governors. Okay, so it is a very good article and it has suggestions that how we can check the falling rupee in India. Get the point? Okay. So proceeding towards the first article. Okay? The first article says that mother of all deals, India and European Union finalize the free trade agreement. Okay. Before going into the details of the India-European Union free trade agreement, I want you to check the basics. See, this is also further details about the agreement, but to the basics I will be going on the next slide. This is where I have kept the basis for free trade agreement. What are the key stages of free trade agreement? First of all, two countries, when they have to sign a free trade agreement between them, they will first of all do the feasibility studies. वो क्या करेंगे? सबसे पहले चेक करेंगे कि ये एग्रीमेंट कितना फिजिबल है और इसका क्या क्या स्कोप है. दोनों कंट्रीज असेसमेंट करेंगे अपनी अपनी इकोनॉमिक सिचुएशंस का, उनके जो ट्रेड एग्रीमेंट साइन करेंगे उसका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या होगा, क्या उससे इकोनॉमिक गेन्स होंगे, तो दोनों कंट्रीज उसका एक फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे. ठीक है. अब यूरोपियन यूनियन और इंडिया का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसकी फिजिबिलिटी स्टडीज जो है इंडिया, यहीं पे मैं लिख रहा हूं, इंडिया यूरोपियन यूनियन this feasibility study started in 2007. 2007 में ये स्टार्ट हुआ. ठीक है. फिर उसके बाद आता है नेगोशिएशन राउंड. ठीक है. नेगोशिएशन राउंड धीरे धीरे स्टार्ट होते होते करीब करीब 2009-10 में नेगोशिएशन राउंड भी स्टार्ट होता है. इसमें दोनों कंट्रीज नेगोशिएट करती है कि हम क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रखेंगे, कैसे अपने ट्रेड बैरियर्स रिलीज करेंगे, किन किन गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड करेंगे और क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी. ये नेगोशिएशन शुरू हो जाती है. ठीक है. ये नेगोशिएशन करीब करीब 2010 में स्टार्ट हुई थी इंडिया और यूरोपियन यूनियन केस में, और ये चलती रही 2014 तक. कहां तक चलती रही? 2014 तक. ठीक है. और 2014 में दे वर स्टॉल्ड. ओके. और आफ्टर दैट दे रिज्यूम्ड द नेगोशिएशन रिज्यूम्ड इन 2022, और फाइनली in 2026 we were able to strike a deal. Okay, much credit to the leaders of India as well as European Union, but also thanks to President Donald Trump. He induced so much economic uncertainties due to the Trump tariff wars which he started. Okay, that ended up India looking for an alternative and ended up European Union also to be very cordial and ended up making this deal happen. Get the point? तो नेगोशिएशन का राउंड 2010 से स्टार्ट होते होते और 2026 में आके नेगोशिएशन के कंप्लीशन हुआ, जिसमें 2014 से 22 तक 8 साल में इसके ऊपर गैप रहे. इसमें कोई नेगोशिएशन फर्दर नहीं हो पाई. कुछ आर्टिकल्स, कुछ कमोडिटीज है जिन पे एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा था. अब जो फाइनल डील हमने साइन की है, इसमें जिन जिन चीजों पे हमारा एग्रीमेंट नहीं बन पाया यूरोपियन यूनियन के साथ, यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया हैड एग्रीड टू कीप देम असाइड फॉर अ व्हाइल एंड साइन द डील फॉर अदर ऑब्जेक्ट्स एंड अदर आर्टिकल्स. ठीक है. अब नेगोशिएशन राउंड जो है वो कंप्लीट हो गया हमारा 2026 में आके. अब आगे क्या होगा? ड्राफ्ट होगा ये एग्रीमेंट और उसके बाद इसका लीगल रिव्यू होगा, जो मैंने कल के आर्टिकल में भी आपको बताया कि नाउ ड्राफ्टिंग विल टेक प्लेस एंड लीगलिटीज जितनी भी है, लीगल
ओपिनियंस जो है दोनों साइड्स एक्सचेंज करेंगी, लीगलिटीज जितनी भी है इसमें वर्कआउट करेंगी और फिर फाइनल ड्राफ्ट बन के तैयार हो जाएगा। उसके बाद फिर ऑफिशियल साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट होगा, दोनों कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स क्या करेंगे, इसको साइन करेंगे। मैं आपको याद दिला दूं, यूरोपियन यूनियन अकेला नहीं है, यूरोपियन यूनियन इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ 27 कंट्रीज। ओके, इट इज अ ग्रुप ऑफ 27 कंट्रीज। ओके, सो हर कंट्री को ये ड्राफ्ट जो है उनकी लोकल लैंग्वेज में भेजा जाएगा रीडिंग पर्पस के लिए, और फिर लीगल लूप होल्स जितने भी है उसको वर्कआउट किया जाएगा, और फिर फाइनली साइनिंग होगा रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ बोथ द कंट्रीज। ठीक है, एंड फाइनली इट विल बी रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन का मतलब होता है अप्रूवल। जैसे इंडिया का रेटिफिकेशन कौन करेगा, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, और यूरोपियन यूनियन का कौन करेगा, यूरोपियन यूनियन का जो लेजिस्लेटिव बॉडी है, ठीक है, पार्लियामेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन। ओके, सॉरी, लेजिस्लेचर ऑफ यूरोपियन यूनियन। ठीक है, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, दोनों कंट्रीज जो है एक डेट फिक्स करेंगी कि इस डेट से हमारा जो ये एग्रीमेंट है ये इनफोर्स हो जाएगा। ठीक है, फिर उसका इंप्लीमेंटेशन होगा। अभी हम ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि अब जनवरी में हमने ये अभी नेगोशिएशंस ही कंप्लीट किए हैं, अभी इसके बाद 3 स्टेजेस और है। ठीक है, लेकिन ये सबसे टफेस्ट स्टेज होती है, जब ये फाइनलाइज हो जाए आगे की स्टेजेस आर क्वाइट इजी। ठीक है, और ये हालांकि टाइम कंज्यूमिंग है, अभी भी हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि जनवरी में इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ तो ये अब मार्च में इंप्लीमेंट हो जाएगा, नहीं, ऐसा हो सकता है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ये इंप्लीमेंट हो। ठीक है, तो दो कंट्रीज को आपस में जब ट्रेड बढ़ाना हो वो कई तरीके के एग्रीमेंट करते हैं। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक एडवांस स्टेज ऑफ एग्रीमेंट आती है। बिफोर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यहाँ पे मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कितने इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स किस टाइप के होते हैं, और ये मैं प्रोग्रेसिव स्टेजेस बताऊंगा कि पहले क्या होता है फिर आगे कौन सा। पहला एग्रीमेंट होता है जिसको आप कहते हैं पीटीए, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें दो कंट्रीज एक दूसरे को प्रेफरेंशियल पार्टनर्स की तरह ट्रीट करती हैं, और इसमें टैरिफ सिर्फ कम होते हैं, पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं हो जाते। ठीक है, दिस इज प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। फिर आप आगे बढ़ते हैं तो आता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है कि जब आप ट्रेड शुरू करते हैं, दो कंट्रीज जब ये एग्रीमेंट करती हैं, इसमें कुछ चीजों के ऊपर टैरिफ्स का रिडक्शन होता है इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में, और कुछ चीजों में टैरिफ एलिमिनेट भी किया जाता है। ठीक है, रिडक्शन एज वेल एज एलिमिनेशन ऑफ टैरिफ्स जो है मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज के लिए कर दिया जाता है, कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एक दूसरे के लिए सस्ता कर दिया जाता है, ट्रेड बैरियर्स को रिमूव किया जाता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से आगे जब हम बढ़ जाएंगे तो क्या होता है, देन कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, दैट इज कॉल्ड सीपा। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसका दूसरा नाम क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, सीपा और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, दोनों कंट्रीज जो है ब्रॉडर पैक्ट साइन करते हैं, गुड्स में, सर्विसेज में, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर भी बात करना शुरू करते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में कैसे शेयरिंग कर सकते हैं, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स को कैसे शेयर कर सकते हैं, तो ये एक और एडवांस स्टेज आती है। ठीक है, उसके बाद कॉमन मार्केट एग्रीमेंट, सीएम, और इकोनॉमिक यूनियन एग्रीमेंट, ईयू, सीएम और ईयू, इकोनॉमिक यूनियन या फिर कॉमन मार्केट। मींस दो कंट्रीज इतना ज्यादा एक दूसरे के साथ ट्रेड करने लग गई हैं कि अब वो एक अपनी दोनों इकोनॉमीज को इतना इंटीग्रेट कर देती है कि वो अपने आप को एक कॉमन मार्केट डिक्लेयर कर देती है। ट्रेड बैरियर्स टोटली खत्म हो जाते हैं, उनके बीच में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की कोई प्राइस नहीं होती। इसमें हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो जाती है दो कंट्रीज की। इसमें लेबर भी मूव कर सकती है, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट और पॉलिसीज जो है वो पूरी तरह से हार्मोनाइज कर दी जाती है। ये सबसे एडवांस लेवल ऑफ इकोनॉमिक एग्रीमेंट होता है, जिसको आप क्या कहते हैं, कॉमन मार्केट और इकोनॉमिक यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन जो है वो एक कॉमन मार्केट एग्रीमेंट पे ऑलरेडी पहुंच चुका है। 27 कंट्रीज आर फॉलिंग अंडर द कॉमन मार्केट एग्रीमेंट, इसीलिए उसको यूरोपियन यूनियन कहते हैं। अब इंडिया उसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रहा है इस समय, तो हम ये वाला एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, ये वाला नहीं साइन कर रहे, ये वाला नहीं साइन कर रहे। अभी ये वाला तो नहीं हो सकता क्योंकि उसके लिए थोड़ा सा विसिनिटी में भी होना जरूरी है दो कंट्रीज का। हालांकि वो प्रीरिक्विजिट कंडीशन नहीं है, लेकिन फिजिबिलिटी के लिए वो जरूरी है। ठीक है, तो अब आपको बेसिक्स पता चल गया होगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। तो इसका मतलब इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी साइन कर लिया, उसमें दोनों कंट्रीज आपस में ट्रेड बैरियर्स को रिमूव करेंगे, एक दूसरे के साथ ट्रेड को ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटेट करेंगे, और ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स, रादर बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन सकते हैं एक दूसरे के लिए। ठीक है, और उसके अलावा जो है ये टैरिफ्स को ग्रेजुअली या तो कुछ कुछ चीजों पे एलिमिनेट कर रहे हैं और कुछ कुछ चीजों पे ग्रेजुअल रिडक्शन कर रहे हैं। सारी डिटेल्स इन आर्टिकल्स में दी है, मैं आपको ब्रीफली बता भी दूंगा। ठीक है, अब यूरोपियन यूनियन ने क्या कहा है कि हम इंडिया के जितने भी एक्सपोर्ट्स जा रहे हैं यूरोपियन यूनियन में इंडिया के जितने भी एक्सपोर्ट्स जाएंगे 99.5 पे क्या करेंगे, हम टैरिफ्स ड्रॉप कर देंगे, टैरिफ
ड्रॉप कर देंगे। मींस 99.5% एक्सपोर्ट जो इंडिया के जाते हैं यूरोपियन यूनियन में, उन पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले टैरिफ ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंडिया ने क्या कहा कि 97.5% जो यूएसए, जो यूरोपियन यूनियन से हम इंपोर्ट करते हैं, उन पे हम क्या कर रहे हैं, यूरोपियन इंपोर्ट्स पे हम क्या कर रहे हैं, टैरिफ ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, यूरोपियन यूनियन से 97.5% जो इंपोर्ट हम करेंगे उस पे हम क्या करेंगे, टैरिफ्स ड्रॉप करेंगे। ठीक है, जैसे जिसमें यूरोपियन वाइन जो है या लग्जरी कार जो है वो थोड़ा इंडिया के लिए लेस एक्सपेंसिव हो जाएंगी, क्योंकि उन पे जब वो आते हैं, बॉर्डर क्रॉस करते हैं, वहां पे एक ड्यूटी पे करना पड़ता है, कस्टम ड्यूटी, जिनको टैरिफ्स कहते हैं। अब वो टैरिफ जब नहीं पे करना पड़ा तो वो कार्स जो है वो कॉस्टली नहीं रहेंगी। ठीक है, और इकोनॉमिक्स ही नहीं सिर्फ इस वाले ट्रेड एग्रीमेंट में है, इसमें जियोस्ट्रेटिक सिग्निफिकेंस भी है इसका, जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है इसका। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैंने कहा आपको कि वर्ल्ड जो है मल्टीपोलर ब्लॉक्स में जो है डेवलप हो रहा है। ठीक है, चाइना एक अलग ब्लॉक बन रहा है, यूएसए ऑल टुगेदर नोटोरियस चीजें कर रहा है। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में इंडिया का एक बहुत बड़ा पार्टनर होना बहुत जरूरी था, और इसका ऐसा पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ कि आज की आप स्टॉक मार्केट को अगर आप देखेंगे कितना ज्यादा जंप कर गई एक दिन में ही। पॉजिटिव सेंटीमेंट इंड्यूस होता है ना इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद ये दो कंट्रीज, इंडिया और यूरोपियन यूनियन, 2/3 ऑफ द ग्लोबल ट्रेड इनके पास ऑलरेडी है। ठीक है, अब ऊपर से यूएसए ने इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी इंड्यूस कर दी वर्ल्ड इकोनॉमिक्स में, तो ये ट्रेड एग्रीमेंट, इसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहना सही है। ठीक है, और इससे क्या होगा कि हमारा जो ग्लोबल टर्माइल है, जितना भी ग्लोबल टर्माइल है, इस में हम स्टेबिलिटी जो है थोड़ा स्ट्रेंथन कर पाएंगे। ठीक है, अब ये कहा जा रहा है कि ये वाला जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, दिस विल बी वन ऑफ द लार्जेस्ट एवर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया हैज एवर साइंड। और इससे क्या होगा, इंडियन गुड्स को एक्सेस मिलेगा, कहां, यूरोपियन मार्केट्स के लिए। ठीक है, और पर्टिकुलरली जो हमारे फार्मर्स हैं या स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए नई नई पॉसिबिलिटीज जो है वो क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है। वी आर क्रिएटिंग न्यू पॉसिबिलिटीज, बिगर पॉसिबिलिटीज फॉर द पीपल इन द अमेरिका एज वेल एज, सॉरी, फॉर द पीपल इन यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में हम एक बहुत बड़ी मार्केट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें इसके अलावा, लार्जेस्ट होने के अलावा और क्या क्या फायदा है इंडिया के साथ। ठीक है, मैंने हिस्ट्री आपको बता दी इसकी, कि 2007 से शुरू हुई थी टॉक्स, और अब 2026 में आके कंक्लूड हुई है। इसमें यूरोपियन यूनियन को क्या बेनिफिट होगा, यूरोपियन यूनियन पे टैरिफ जो है वो पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, यूरोपियन यूनियन की 90% गुड्स के ऊपर, 90% गुड्स के ऊपर टैरिफ क्या हो जाएगा, या तो कट हो जाएगा या रिमूव हो जाएगा। टैरिफ्स विल बी कट और रिमूव्ड फ्रॉम 90% ऑफ द यूरोपियन यूनियन गुड्स। पहला तो ये फायदा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा फायदा हो जाएगा, वाइन ड्यूटीज जो है वो कट हो जाएंगी। पहले कितनी थी यूरोपियन यूनियन की वाइन की के ऊपर ड्यूटी, 150%, अब कितनी हो जाएंगी, 20-30%। तो सोचो कितना सस्ता हो जाएगा। ठीक है, और स्पिरिट्स विल बी कट टू 40%। कार टैरिफ्स विल बी ड्रॉप फ्रॉम 110% टू 10% ओनली। 100% हम कम कर रहे हैं कार के ऊपर जो टैरिफ्स लग रहे थे। ठीक है, करीब करीब 2.5 लाख जो व्हीकल्स आ रही थी, इसमें कोटा रख दिया कि 2.5 लाख व्हीकल्स, अप टू 2.5 लाख व्हीकल्स, द टैरिफ कोटा विल बी ओनली हाउ मच, 110% की जगह सिर्फ 10% कोटा टैरिफ लगाएंगे हम। ठीक है, एयरबस पे, एयरक्राफ्ट पे और प्रोसेस्ड फूड पे टैरिफ कितना कर दिया जाएगा, 0। टैरिफ विल बी एलिमिनेटेड। किस किस चीज पे, एयरबस पे, एयरक्राफ्ट पे और प्रोसेस्ड फूड पे। और 0 टैक्स ऑन मोस्ट मशीनरी एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, मशीनरी और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स पे 0 टैक्स लगेगा। ठीक है, अब इंडिया को क्या फायदा होगा, इंडिया जितना भी एक्सपोर्ट करेगा, जैसे कि टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स, स्पाइसेस, ये वाले,
तो इंडिया कैसे बेनिफिट होगा इस एग्रीमेंट से, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से? इंडिया को क्या फायदा होगा कि इंडिया की जितनी भी गुड्स है उनको कोई भी टैक्स नहीं पे करना एट द बॉर्डर ऑफ यूरोपियन यूनियन, ठीक है। यूरोपियन यूनियन में क्या क्या कौन कौन सी चीजें ड्यूटी फ्री हो जाएंगी इंडिया के लिए? ड्यूटी फ्री मतलब कोई भी टैक्स आपको पे नहीं करना व्हेन यू आर एक्सपोर्टिंग, ठीक है। तो इसमें जेम्स हो गया, स्पाइसेस हो गया, लेदर प्रोडक्ट्स हो गए, या फिर इंडिया का टेक्सटाइल हो गया, ये टोटली ड्यूटी फ्री हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा 1.6 मिलियन टन स्टील जो है वो ड्यूटी फ्री हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर अगर एक्सपोर्ट करेंगे तो कुछ ड्यूटी फिर देना पड़ेगा, ठीक है। इजियर फॉर स्किल्ड इंडियन वर्कर्स टू वर्क इन 27 कंट्री ब्लॉक, तो वर्कर्स का जो है इजी हो जाएगा मोबिलिटी, कि वर्कर्स जो है आराम से यूरोपियन यूनियन के किसी भी 27 कंट्रीज में जा सकते हैं और वहां पे काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंडिया जो है यूरोपियन यूनियन, इंडिया जो है इसके बाद क्या होगा, बाकी यूरोपियन यूनियन के पार्टनर्स की तरह ही डील किया जाएगा, किसके ऊपर? कार्बन बॉर्डर टैक्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे टैरिफ्स फेज आउट हो जाएंगे आर्म्स के ऊपर, एम्यूनिशन के ऊपर और बाकी गुड्स के ऊपर भी, ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें एक्सक्लूड की गई है जिन पे हमेशा से टसल रहा है इंडिया और यूरोपियन यूनियन का। वो कौन कौन सी चीजें हैं? जैसे सबसे पहले चिकन, राइस वगैरह, इन पे कोई कंसेशन इंडिया ने नहीं दिया, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़े एक्सपोर्ट कमोडिटीज हैं हमारी, और इनके ऊपर कंसेशन न देना मतलब इंडिया के अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सेव करना है। और दूसरा, कोई एग्रीमेंट दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में नहीं हुआ एनर्जी और रॉ मटेरियल की प्रोक्योरमेंट को लेकर, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर जो है उसके ऊपर भी कोई टॉपिक, कोई डिस्कशन नहीं हुआ, ये वाला टॉपिक भी इंडिया ने रिजेक्ट किया, इसलिए क्योंकि यूरोपियन यूनियन कंट्रीज जो है उनका कार्बन एमिशन जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिया। तो अगर इस पे एग्रीमेंट हो जाता तो उन्होंने ऑलरेडी जितना एमिशन कर चुका है उसके लिए फिर हमको भी थोड़ा सा उनकी मिटिगेशन के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ता। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले चैप्टर पे हमने कोई डिस्कशन नहीं किया। और इसके अलावा ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के ऊपर अभी हमने कोई एग्रीमेंट नहीं किया। जैसे मैंने आपको ये बता दिया, ज्योग्राफिकल इंटीग्रेशन के, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इन पे अगर हमको एग्रीमेंट करना होगा तो हम आगे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से भी आगे की स्टेज पे जाएंगे, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट या कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन एग्रीमेंट पे चले जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद ये भी कहा गया है कि अगले 10-15 दिन में लीगल स्क्रूटिनी होगी, जो हमने ये एग्रीमेंट किया है इसका लीगल स्क्रूटिनी करने के बाद फिर धीरे धीरे हो सकता है विद इन द कैलेंडर ईयर ऑफ 2026 हम इसको इन्फोर्स करेंगे, ठीक है। और 97 टैरिफ लाइंस पे हमने 97% टैरिफ लाइंस पे हमें टैरिफ रिडक्शन मिला है। 99.5, ये जो 99.5% मैंने पहले ही बताया था, दिस इज ट्रेड बाय वैल्यू, बाय वैल्यू 99% बाय ट्रेड वैल्यू, जितना हमारा ट्रेड वैल्यू है उसका 99.5% पे हमको टैरिफ रिडक्शन मिला है या टैरिफ कट्स मिल गए, ठीक है। लेकिन जब हम लाइंस देखें तो 97% टैरिफ लाइंस पे हमको क्या मिला है? टैरिफ रिडक्शन मिला है, ठीक है। और 90.7% जो इंडियन एक्सपोर्ट जो है उनमें एलिमिनेट हो जाएंगी टोटल ड्यूटीज, और बाकी में जो है वो रिड्यूस हो जाएंगी धीरे धीरे, ठीक है। और ड्यूटी एलिमिनेशन जो है ओवर 3 to 5 ईयर्स हम करेंगे। कितने? अपने ट्रेड पे 2.9% अपने ट्रेड पे हम टैरिफ एलिमिनेशन कर पाएंगे धीरे धीरे विद इन 3 to 5 ईयर्स, ठीक है। इसके अलावा और क्या बात की गई इसमें कि 6% इंडिया के एक्सपोर्ट जो है उनमें टैरिफ रिडक्शंस मिलेगा, जैसे पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए, मतलब इनमें टैरिफ पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं होंगे, टैरिफ रिडक्शन कराएंगे हम इनमें, ठीक है। लेबर इंटेंसिव सेक्टर में हमको जो है और ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि लेबर इंटेंसिव सेक्टर पे हमने क्या किया है कि जिसमें इंपोर्ट ड्यूटी हमको लगता है कितना 4% से 26%, यूरोपियन यूनियन ने क्या कहा कि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसके लिए जैसे ही ये एंटर होगा एग्रीमेंट, लेबर इंटेंसिव सेक्टर पे हम 0 ड्यूटी कर देंगे, ठीक है। मैरीन प्रोडक्ट्स जो है अभी ड्यूटीज उस पे कितनी है? 26% है, ठीक है। और इन मैरीन प्रोडक्ट्स पे जो है पूरी तरह से ड्यूटीज एलिमिनेट हो जाएंगी। केमिकल्स पे 12% ड्यूटी है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगी। टेक्सटाइल्स और एप्रल पे 12% ड्यूटी है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगी। जेम्स एंड ज्वेलरी पे 4%, फुटवेयर पे 10%, ये भी एलिमिनेट हो जाएंगी। कंज्यूमर गुड्स के ऊपर 10%, ये भी एलिमिनेट हो जाएंगी। और टॉयज एंड स्पोर्ट्स गुड्स पे हमारी कितनी ड्यूटीज है? 4.7%, वो भी एलिमिनेट हो जाएंगी। तो ये वो वाली गुड्स हैं जिन पे पूरी तरह से ड्यूटी जस्ट एलिमिनेट हो जाएंगी, ठीक है। और यूरोपियन यूनियन ने ये भी एग्री किया है कि 144 सर्विसेज के जो सब सेक्टर है, जैसे आईटी सर्विसेज है, आईटी एनेबल्ड सर्विसेज है, प्रोफेशनल सर्विसेज है, एजुकेशन सर्विसेज है या बाकी सर्विसेज है, इन पे भी हम क्या करेंगे? धीरे धीरे टैरिफ्स रिडक्शन करेंगे और टैरिफ्स एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। लेकिन इंडिया ने यूरोपियन यूनियन को क्या कहा कि हम आपकी 92.1% ऑफ टैरिफ लाइंस जो है वो क्या कर देंगे? खोल देंगे, ठीक है। और जो
92.1% टेरिफ लाइन्स। इसमें कितना वॉल्यूम है आपका एक्सपोर्ट का? 97.5% ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन एक्सपोर्ट टू इंडिया। इस पे हम ड्यूटीज जो है आपको क्या कर देंगे? रिलैक्स कर देंगे, ठीक है, रिलैक्स कर देंगे। और 49.6% पे टेरिफ लाइंस जो है उसमें इमीडिएट ड्यूटी एलिमिनेशन होगा। 49.6% पे हम टेरिफ पूरी तरह से एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। हालांकि हमारा जो है ड्यूटी एलिमिनेशन थोड़ा कम परसेंटेज पे हुआ है, ठीक है, और धीरे धीरे फेज एलिमिनेशन होगा 39.5% एक्सपोर्ट्स पे, और 3% प्रोडक्ट्स पे हम क्या करेंगे? फेज्ड टेरिफ रिडक्शन करेंगे। ये हमने यूरोपियन यूनियन को कमिट किया, ठीक है। और टेक्नोलॉजी, हाई टेक्नोलॉजी गुड्स या एक्सपोर्ट या इंपोर्ट सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करने के लिए हमने क्या करा? इससे क्या फायदा होगा कि जो बिजनेस कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट है, वो हमारे जो बिजनेस सेक्टर के लोग हैं उनके लिए बहुत कम हो जाएगा, ठीक है, और हमारा मेक इन इंडिया जो है और ज्यादा प्रमोट होगा इससे, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा यूरोपियन यूनियन को इंडियन मार्केट्स में, और इंडियन एक्सपोर्टर्स को यूरोपियन मार्केट्स में, ठीक है। सर्विस सेक्टर में हमने एग्री किया कि हम 102 सब सेक्टर्स, देखो यूरोपियन यूनियन कहता है 144 सर्विस के सब सेक्टर्स को हम क्या करेंगे? धीरे धीरे ड्यूटीज एलिमिनेट करेंगे। हमने यूरोपियन यूनियन को क्या कहा? 102 सब सेक्टर्स जो हैं, जो आपकी प्रायोरिटीज हैं, जैसे प्रोफेशनल हो गए, बिजनेस, टेलीकम्युनिकेशन, मैरीटाइम, फाइनेंशियल सर्विसेज और एनवायरमेंटल सर्विसेज, तो इन पे हम क्या करेंगे? आपको धीरे धीरे ड्यूटीज जो है वो एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात कि ऑटोमोबाइल सेक्टर या वाइन सेक्टर जो है, इसमें पहले कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी, लेकिन अब हम इसके एग्रीमेंट पे आ गए हैं, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, कई सारी चीज इसमें क्या हुआ, इसमें हमने कैसे सोल्यूशन निकाला? हमने इसमें कोटा बेस्ड सोल्यूशन लिया। कोटा बेस्ड सोल्यूशन मींस कुछ कोटा को हम ड्यूटी फ्री कर देंगे, उसके बाद अगर कोई एडिशनल एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना चाहे उसके ऊपर टैक्सेस रखेंगे। तो कोटा सिस्टम से हमने वाइन और ऑटोमोबाइल सेक्टर पे जो हमारी एक हर्डल बन रही थी इस ट्रेड एग्रीमेंट में, उसको हमने कोटा सिस्टम पे कंक्लूड कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से इट इज कॉल्ड एज मदर ऑफ ऑल डील्स, वन ऑफ द बिगेस्ट डील विच इंडिया हैज क्रैक्ड विद एनी कंट्री इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, ठीक है। प्लीज इसको पढ़ना बहुत अच्छे से, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, हाईली इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो, ये तो हो गया बेसिक्स जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। नेक्स्ट, प्लेस इन इलेक्टोरल रोल इज ए क्वालिफाइड राइट, ठीक है। पहले पॉलिटी के पर्पज से आप समझो क्वालिफाइड राइट क्या होते हैं। वो राइट विच आर नॉट एब्सोल्यूट, विच आर सब्जेक्टेड टू टर्म्स एंड कंडीशंस, क्वालिफिकेशंस। जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, इट इज ए फंडामेंटल राइट बट इट इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज क्वालिफाइड। मींस स्पीच में फ्रीडम इतनी है कि आप नेशनल सिक्योरिटी के अगेंस्ट कुछ ना बोल लो, आप किसी की डिसरेस्पेक्ट करने ना लगो, ठीक है। जहां तक दूसरे की डिग्निटी को आप हार्म नहीं कर रहे हो, उतना ही आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो वो भी एक क्वालिफाइड राइट है। इसी तरह आर्टिकल 20 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 326 क्या कहता है कि हर इंडिविजुअल जो 18 साल से ऊपर है उसको वोटिंग का राइट है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, ठीक है। लेकिन उसमें यह भी तो है कंडीशन कि वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, उसमें यह भी तो कंडीशन है कि वो किसी भी तरीके से लॉ से डिस्क्वालीफाई ना हुआ हो, ठीक है। तो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज तो है, लेकिन 2-3 कंडीशंस है। पहला है सिटीजन ऑफ इंडिया, दूसरा है 18 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, और तीसरा है नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ इन एनी केस। तो अब डिस्क्वालिफिकेशन लॉ से कब आता है? या तो वो सिटीजन ही नहीं है, तो चेक कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन चेक करेगा। 18 ईयर्स ऑफ एज चेक कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट से चेक करेगा। नॉट डिस्क्वालिफाइड, इसके लिए कई सारे लीगल प्रूफ्स, कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स एटसेट्रा एटसेट्रा वो सारे लिए जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि 12 किस्म के डॉक्यूमेंट्स, 12 टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या वेरीफाई करने के लिए चाहिए, और जब आप इतने डॉक्यूमेंट्स ले रहे हो फिर भी डिस्क्रिपेंसीज, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज क्यों नजर आ रही हैं आपकी एक्सरसाइज में, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन कंटिन्यूअसली डिफेंड कर रहा है कि डेड डुप्लीकेट वोटर्स को इलेक्टोरल रोल से हटाने के लिए ये काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये जो वोटिंग का राइट है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज है, ये बिल्कुल एक क्वालिफाइड राइट है, क्योंकि सेक्शन 16 जो है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इन इलेक्टोरल रोल एंड 19, उसमें कंडीशंस ऑफ रजिस्ट्रेशन जो है पूरी तरह से बताई गई है। कौन सा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, उसका जो सेक्शन 16 है, सेक्शन 16 और सेक्शन 19, इन दोनों सेक्शंस में
बताई गई हैं कंडीशंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए वोटर। तो वो कह रहे हैं कि हम इसी डोमेन में रह के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को कैरी आउट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है फिर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज क्यों आ रही है। तो अभी ये क्वेश्चन चल रहा है, जैसे जजमेंट कुछ आएगा तो वो देखा जाएगा। ठीक है, द सोल्यूशन टू द फॉलिंग रूपी लाइज इन डिप्लोमेसी। जो रूपी फॉल कर रही है कंटिन्यूअसली, लिखने वाले बहुत ही जबरदस्त intelligent, one of the most intelligent governors RBI has seen, C. Rangarajan. He has headed also various panels on economics, Indian economy. ठीक है, वो ये कह रहा है कि ग्रोथ रेट 7.4% चल रहा है। ठीक है, इन्फ्लेशन भी लेस देन 2% चल रही है, इन्फ्लेशन भी लेस देन 2% चल रही है। ये हो गया आपका ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड, इन्फ्लेशन का ये डेटा है। तो फिर रुपी क्यों डेप्रिशिएट कर रही है? रुपी इसलिए डेप्रिशिएट कर रही है क्योंकि उसका मेजर जो है वो ना तो डिमांड फॉल करी है, ना तो रुपी का एक्सेस सप्लाई हो गया, ना तो एक्सेस मनी सप्लाई है इकोनॉमी के अंदर। तो फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि इस समय फॉरेन कैपिटल आउटफ्लो बहुत ज्यादा हो गया। ठीक है, मींस जो फॉरेनर्स हमारे इंडिया में इन्वेस्ट किए थे वो अपना इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा विड्रॉ कर लिए। ठीक है, फॉरेन कैपिटल इनफ्लो, जिसकी कैपिटल आउटफ्लो, सॉरी फॉरेन कैपिटल आउटफ्लो, ये बिगेस्ट विलन है इस समय रुपी डेप्रिसिएशन का। और इसकी क्या वजह है? फॉरेक्स भी हमारा इसकी वजह से डाउन होता चला जा रहा है, क्योंकि जो फॉरेनर विड्रॉ कर रहा है ऑब्वियसली डॉलर्स में ही विड्रॉ करेगा। उसके विड्रॉ करने की वजह से क्या हो रहा है कि हमारा अपनी करेंसी का जो है डॉलर का डिमांड बढ़ रहा है कंटिन्यूअसली, और डॉलर का डिमांड बढ़ने की वजह से रुपी का कंटिन्यूअसली डेप्रिसिएशन हो रहा है। अब ये फॉरेनर्स इंडियन मार्केट से, इंडियन इक्विटीज से पैसा क्यों विड्रॉ कर रहे हैं? क्योंकि इंडिया में बहुत ही ज्यादा अनसर्टेनिटी इंड्यूस कर दी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, उसने ग्लोबल लेवल पे अनसर्टेनिटी इंड्यूस कर दी। ठीक है, और किसी भी इन्वेस्टर को ये कॉन्फिडेंस नहीं रहा कि ऐसी इकोनॉमीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पे इतना ज्यादा अनसर्टेनिटी है, ट्रंप यहां कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, केवल अप्रैल से लेकर दिसंबर तक हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो कितना था? 96.58 बिलियन डॉलर्स। व्हाट इज ट्रेड डेफिसिट? ट्रेड डेफिसिट मींस हमने एक्सेस ऑफ इंपोर्ट्स किया है और कम एक्सपोर्ट किया है। किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, जिसमें हम ट्रेड डेफिसिट में हम दोनों चीजें नोट करते हैं, मर्केंडाइज मींस गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब ये ट्रेड डेफिसिट जो है हमारा थोड़ा सा बढ़ गया है। ठीक है, पहले ट्रेड डेफिसिट कितना था? 88.43 बिलियन सेम पीरियड में 2024 में। तो ट्रेड डेफिसिट भी विलन जो है ज्यादा नहीं है, ज्यादा बड़ा विलन है कैपिटल आउटफ्लो, जो पैसा मार्केट से निकल रहा है। ठीक है, ये पैसा मार्केट से क्यों निकल रहा है मैंने आपको बता दिया, अनसर्टेनिटीज की वजह से। अब 25% आपने पहले रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया, फिर 25% पेनल्टी टैरिफ लगा दिया। रेसिप्रोकल मींस हमने भी तुम पे लगा रखा था, तुमने भी हम पे लगा दिया रेसिप्रोकल टैरिफ, और 25% आपने हमारे ऊपर पेनल्टी टैरिफ लगा दिया कि हम रशिया के साथ क्यों डील कर रहे हैं। अब आप बोल रहे हो हम और फर्दर टैरिफ्स इंक्रीज कर सकते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी इंडियन इकोनॉमी में क्या हो गया, इन्फ्यूज हो गया, जिसकी वजह से लोगों ने पैसा विड्रॉ करना शुरू कर दिया। ऐसा पहले भी हुआ 2022 में, लेकिन 2022 में कोविड के जस्ट बाद बहुत सारी कंट्रीज क्या कर रही थी, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए पुश कर रही थी, क्योंकि इकोनॉमिक स्लो डाउन पूरा वर्ल्ड में फैला उस कोविड-19 की लॉकडाउन्स की वजह से। तो उस टाइम पे फेडरल रिजर्व जो सेंट्रल बैंक है अमेरिका का, उसने इंटरेस्ट रेट्स का क्या कर दिया था, उस वक्त उसने हाइक कर दिया था इंटरेस्ट रेट। जब उसने शार्प हाइक कर दिया, फेडरल रिजर्व ने, जो सेंट्रल बैंक है अमेरिका का, शार्प हाइक इंटरेस्ट रेट का किया, तो लोगों को वहां इन्वेस्ट करना प्रॉफिटेबल लगा। इसलिए इंडियन मार्केट से खूब सारा इक्विटी उस टाइम पे भी विड्रॉ हुआ, और रुपी उस टाइम पे भी करीब करीब 10% जो है वो डेप्रिशिएट हुआ। लेकिन आज का डेप्रिसिएशन जो है वो और ज्यादा कॉन्टिन्यूअस है, और ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आगे फिर से फर्दर डेप्रिसिएशन होगी। ठीक है, अब इंडिया आरबीआई इसमें कंटिन्यूअसली क्या कर रही है, इंटरवीन करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अब एक सिस्टम है हमारे कंट्री में, 1993 तक क्या आरबीआई क्या कर रहा था, एक्सचेंज रेट खुद फिक्स कर रहा था। दैट वाज कॉल्ड पेग्ड एक्सचेंज रेट। मींस आरबीआई फिक्स कर रहा है $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज, $1 इज इक्वल टू 60 रुपीज। तो आरबीआई के पास ये ऑटोनॉमी थी। लेकिन जब हमने एक्सचेंज रेट को लिबरलाइज करना शुरू कर दिया, मार्केट से लिंक करना शुरू कर दिया, ठीक है, तो आज की डेट में फ्लोटिंग मार्केट लिंक्ड इंटरेस्ट रेट्स है, जिसमें आरबीआई का ज्यादा कंट्रोल नहीं है। मार्केट बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ रुपी एंड डॉलर ऑटोमेटिकली एडजस्ट होता है इंटरेस्ट एक्सचेंज रेट रुपी और डॉलर के कंपैरिजन
कंपैरिजन, पैरिटीज जो है वो खुद ब खुद ऑटो एडजस्ट होती है, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में आरबीआई एट द मोस्ट क्या कर सकता है, अगर रुपी बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट कर रही है, ठीक है, तो आरबीआई क्या करेगा, ओपन मार्केट में डॉलर सेल करेगा और डॉलर सेल करके रुपी बैंक से ले लेगा, तो रुपी की सप्लाई कम हो जाएगी, तो थोड़ा सा रुपी स्ट्रेंथन हो जाएगी। लेकिन ये मार्जिनल रोल है आरबीआई का, बहुत बड़ा रोल नहीं है इसमें। हालांकि आरबीआई ने पिछले दिनों में ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस में डॉलर काफी ज्यादा सेल किए और रुपी काफी ज्यादा मार्केट से रुपी काफी ज्यादा विड्रॉ की डॉलर सेल करके। उससे क्या होगा कि डॉलर का थोड़ा सप्लाई बढ़ के थोड़ा सा उसका रेट जो है वो कम होता है, लेकिन दैट इज ओनली मैनेजिंग रोल, उसमें कोई डिटरमाइनिंग रोल नहीं है कि बहुत ज्यादा आरबीआई ऐसा कर सकता है। क्यों? क्योंकि हम इस वक्त मैनेज्ड फ्लोट एक्सचेंज रेट में है, ना कि हम इस वक्त पैक्ड या फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में है, ठीक है। तो ओवरऑल हमको क्या हमको ये घबराना चाहिए कि रुपी इतना ज्यादा डेप्रिशिएट हो गया? जब हम ये देख रहे हैं कि रुपी डेप्रिशिएट हो गया, तो आप मेजर करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड ले लो, चाइना का युआन ले लो, ठीक है, ब्रिटेन का पाउंड स्टर्लिंग ले लो, ठीक है, जापानीज येन ले लो, ठीक है। ये वाले करेंसीज की जब मिला के एक बास्केट ऑफ करेंसीज देखेंगे, तो उनकी एवरेज के साथ जब हम इंडिया का एक्सचेंज रेट देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग नहीं है, ठीक है। जब आप बास्केट ऑफ करेंसीज का एक्सचेंज रेट साथ में देखते हो, दैट इज कॉल्ड रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, दैट इज कॉल्ड रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। तो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट में अगर हम देखेंगे तो उसमें डिवेल्युएशन जो हो रही है वो तो हो ही रही है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट इंडिया का जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमैटिक नहीं है। तो अब यह है कि रुपी डेप्रिशिएट फर्दर हो सकती है, लेकिन इंडिया के लिए इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसको बचाना तो है। आप कंटिन्यूअसली डेप्रिशिएट होने तो नहीं दे सकते, तो बचाने के लिए आरबीआई के गवर्नर सी रंगराजन का रिकमेंडेशन है कि आप कंट्रीज के साथ प्रोग्रेसिवली एंगेज करो, खास करके यूएसए के साथ भी बायलैटरल ट्रेड डील स्ट्राइक करने की कोशिश करो। अगर नहीं हो पा रही है, लेकिन एटलीस्ट मेजर कंट्रीज जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की करेंसी बास्केट में आती हैं, जापानीज येन आता है उसमें, चाइनीज युआन आता है, ठीक है, ब्रिटेन का पाउंड स्टर्लिंग आता है, ठीक है। तो ये सारे कंट्रीज के साथ डिप्लोमेटिकली एंगेज करके फर्दर अपनी डील्स को स्ट्रेंथन करना है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ानी है, ये सारा जो है डिप्लोमेसी से होगा, ठीक है। लोग अब जैसे यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ, तो थोड़ा सा इंडियन इकोनॉमी में धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्डअप होगा, इसी की रिस्पॉन्स में रुपी का फर्दर स्ट्रेंथनिंग होगा। तो रुपी एप्रिसिएशन जो होगा व्हेन वी विल हैव बेटर ट्रेड रिलेशंस विद डिफरेंट इकोनॉमीज ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये आज के न्यूज़पेपर का मुझे लगता है मेजर आर्टिकल्स थे, जो बहुत अच्छे आर्टिकल्स थे, विच आई हैव डेल्ट वेरी थॉरोली, ठीक है। एक बार इसको पढ़ के बहुत अच्छे से आप इसको होल्ड बना लो, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई विल बी मीटिंग यू टुमारो अगेन।